من لا نبي بعده أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز بزرگان دین، محترم سامعین اکرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 3-4 جمعوں سے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کیے گئے تھے۔ اس ہفتہ ہم سب اہل دکن کے لیے بڑا افسوسناک، المناک اور دردناک تھا۔ سوئے حرم میں جانے والے زائرین تقریباً 42 جو ہے جام شہادت نوش کیے، اللہ کے راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی لیے اس مناسبت سے فضائل مدینہ، مدینے کی موت، مدینے کی شہادت اور ایسے ہی سفر سے متعلق اسلامی ہدایات کچھ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، مدینہ شریف کی فضائل، مدینہ شریف کے مناقب۔ ہر مسلمان کے 3 وطن ہوتے ہیں۔ ایک وطن وہ ہے جس کو جسمانی وطن کہتے ہیں، اور دوسرا وطن وہ ہے جس کو ایمانی وطن کہتے ہیں، اور تیسرا وطن وہ ہے جس کو روحانی وطن کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے یہ 3 وطن ہیں۔ جسمانی وطن جس میں ہم ہیں، ہندوستان ہمارا جسمانی وطن ہے۔ ایمانی وطن ہر مسلمان کا ایمانی وطن مدینۃ المنورہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو ایمان قیامت سے پہلے مدینہ اور مکہ میں آ کر پناہ لے گا، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں قیامت سے پہلے وہ سب کے سب مدینہ میں جا کر پناہ لیں گے۔ اس لیے مدینہ اور مکہ ہمارا ایمانی وطن ہے۔ تیسرا ہے ہمارا روحانی وطن۔ ہر مسلمان کا روحانی وطن جنت ہے، جس میں ہم سب کو جا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے۔ یہ 3 وطن ہر مسلمان کے ہیں۔ ایک بات مدینہ شریف کے سلسلے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مکہ کو جو فضیلتیں ملی ہیں، مکہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا نام ہے۔ بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ مقام ابراہیم بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صفا مروہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کی یادگار ہے۔ مینا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے ذبح کی جگہ ہے، اس لیے یادگار ہے۔ مزدلفہ اور عرفات بھی ابراہیم علیہ السلام کے یادگار ہے۔ مکہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا نام ہے، تو مدینہ محمد رسول اللہ حبیب اللہ کی یادگار کا نام ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ میری آرام گاہ ہے، مدینہ میرے فتح والا ملک ہے، مدینہ اسلامی پہلی ریاست ہے، مدینے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، مدینہ میں سرکار علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، محمد رسول اللہ مدینہ سے اٹھیں گے۔
मदीना शरीफ हिजरत गाह है, मदीना शरीफ आराम गाह है, मदीना शरीफ कयामत के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवगाह है। वहीं से हुजूर पूरी दुनिया के सामने रौनक अफरोज आलम होंगे। ये दूसरी बात थी मदीना शरीफ के सिलसिले में। तीसरी बात यह है कि मदीना के बेशुमार नाम हैं, तकरीबन 16 या 18 नाम है मदीना शरीफ के। एक नाम है मदीनतुल मुनव्वरा, दूसरा नाम है यसरब, तीसरा नाम है दारुस सुन्ना, चौथा नाम है दारुल हिजरा, पांचवा नाम है दारुल फतह, छठा नाम है दारुल इस्लाम, सातवां नाम है फासिहा, आठवां नाम है आसिमा, नौवां नाम है तौबा, 10वां नाम है तय्यिबा, 11वां नाम है महफूजा, 12वां नाम है महरूसा, 13वां नाम है महफूफा, 14वां नाम है मुबारका, 15वां नाम है मुकद्दसा। ये सब नाम है मदीनतुल मुनव्वरा के। कुरान और हदीस में ये नाम बयान किए गए हैं। ये तीसरी बात थी मदीना शरीफ के सिलसिले में। चौथी बात यह है, जमहूर के पास, जमहूर तमाम बड़े उलमा के पास ये बात तय है, हरमैन में मक्का और मदीना में मुकद्दस और अफजल जगह बैतुल्लाह है, मक्कतुल मुकर्रमा है। लेकिन इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं मदीना मक्कतुल मुकर्रमा से भी अफजल है, इसलिए कि मक्का में अल्लाह रहते नहीं है, अल्लाह की तजल्लियात और अल्लाह का ताल्लुक रहता है। मक्का में तो सरकार का सरापा मौजूद है, इसलिए सिर्फ इमाम मालिक के पास मदीनतुल मुनव्वरा बैतुल्लाह से अफजल है। लेकिन हमारे इमाम, इमाम आदम अलैहि रहमा, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और पूरे जमहूर उलमा का ये इत्तेफाक है, ये बात उनके पास मुत्तफिक है, मक्कतुल मुनव्वरा मदीना से अफजल और औला है। ये चौथी बात थी जो मदीना शरीफ के सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज की गई। दूसरा जो उन्वान है मदीने के फजाइल, मदीने के क्या कहते हैं फजीलतें जो अहादीस में बयान किए गए। मदीना ऐसी जगह है जहां पक्का मुसलमान ही हाजिर हो सकता है। मुनाफिक, काफिर, मुर्तद, जिसके दिल में ईमान के बारे में शक व शुबा है, वो मदीना में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो मदीना हाजिर होता है, हाजिर होने वाले को मदीना गुनाहों से ऐसे साफ कर देता है जैसा भट्टी में लोहे को डाले तो जंग साफ हो जाता। मदीना अपने पास आने वालों के तमाम गुनाहों को साफ कर देता है। हदीस में सरकार ने फरमाया, अल मदीना तनफिन नास कमा यनफिल कैरू खुबसल हदीद। मदीना लोगों की गंदगी को ऐसे खत्म कर देता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को खत्म कर देती है। मदीना जाने के बाद आदमी गुनाहों से मासूम और गुनाहों से मगफूर हो जाता है, इसलिए मदीने की हाजिरी बड़े शर्फ की चीज है। कौन नहीं चाहता कि वो जन्नत को देखे, कौन नहीं चाहता कि वो जन्नत के पास जाए, कौन नहीं चाहता कि जन्नत को छुए, कौन नहीं चाहता कि जन्नत के पास कुछ दिन गुजारे। इस दुनिया में खुशी के लिए जन्नत देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कोई जगह है जो जन्नत जैसी है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मेंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। मेरे मेंबर और मेरी आरामगाह के दरमियान जो हिस्सा है वो दरअसल जन्नत का टुकड़ा है। जो वहां पहुंचा वो दरअसल जन्नत में पहुंचा। जिसने उस हिस्से को देखा रियादुल जन्ना को, उसने जन्नत को देखा। ये फजीलत है मदीने की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، مدینہ مکۃ المکرمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ حرما آمنا، اے اللہ مکہ کو امن والا بنا، مکہ میں پھل نکالو، مکہ میں لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف متوجہ کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ثمرات دو مکہ کو، خیرات دو مکہ کو، لوگوں کے دلوں کو مکہ کا گہوارہ بنا دو، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ سرکار نے مدینے کے لیے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفین بمکۃ من الکما بمکۃ من البرکہ، اے اللہ مکہ میں جو برکتیں آپ نے دی ہے، مدینہ کو دگنی برکتیں عطا کریے۔ جو خیرات ابراہیم کے وسیلے سے مکہ میں آپ نے بانٹا ہے، اس سے ڈبل خیرات مدینہ اور مدینے کے باشندوں پر آپ نازل کریے۔ یہ تیسری بات سرکار نے مدینے کے سلسلے میں کی، مکہ جیسے خیر و برکت کی جگہ اس کو بنا دیجئے۔ جو بندہ بھی عمرے میں یا حج میں بیت اللہ میں حرمین میں حاضر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا، رجا کا یومن ولدت امہ، ایسے وہ اپنے گھر واپس آئے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ فضائل ہے مدینہ شریف کے، یہ کمالات ہے مدینہ شریف کے، اس لیے ہر مسلمان کی دل کی خواہش ہو، تمنا ہو، بیت اللہ میں حاضر ہو، روزے پر حاضر ہو، حضور کے روزے کی زیارت کرے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو زندہ پیدا ہوئے دنیا میں، زندہ اسلام پر رہے اور زندگی میں ایک بار بھی حرمین کو نہیں گئے۔ ان سے زیادہ بد نصیب کوئی آدمی نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار تو جانا ہی جانا۔ اور کیا کہتے ہیں، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، سہولت دی ہے، 3 سال میں ایک بار، 4 سال میں ایک بار کثرت سے حج اور عمرہ کرنے کی عجیب فضیلت۔ ایک حدیث کا کہ الفاظ ہے غالباً، جو آدمی کثرت سے عمرہ اور حج کرے گا، اللہ اس کے رزق میں، دولت میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے بیت اللہ کی حاضری کا ارادہ کیجئے، پہنچتے رہیے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ایک اچھی بات حدیث میں سرکار نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمائی، الاعتکاف فی رمضان کحجتین و عمرتین معی، جس نے رمضان میں 10 دن کا میرے گھر میں بیت اللہ میں اعتکاف کیا، اس نے گویا 2 حج اور عمرے کیے، وہ بھی میرے ساتھ، یعنی سرکار کے ساتھ۔ اس لیے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، رمضان گزاریے بیت اللہ میں، مدینۃ المنورہ میں۔ میں جس بار گیا تھا بیت اللہ، وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو تمل ناڈو کے ہیں، 28 سال سے پورا رمضان بیت اللہ میں گزار رہے ہیں۔ 10 دن نہیں، پورے 30 دن، 28 سال سے۔ مولوی ہے، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، سیٹ نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے۔ عاشقوں کا کام ہے، بار بار روزے پر حاضری ہو، بار بار بیت اللہ پر حاضری ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، روزے میں کسی کی لاش نہیں ہے، روزے میں کسی کی میت نہیں ہے، روزے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان کے ساتھ زندہ ہیں جس شان کے ساتھ آپ مدینہ اور مکہ میں زندہ تھے۔ بالکل باحیات ہے سرکار۔ ہم جاتے ہیں مدینہ میں، ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارا دکھڑا بھی سنتے ہیں، پکا عاشق آیا تو جواب بھی دیتے ہیں، اور دنیا نے جواب لیا بھی ہے۔ ایک عاشق پہنچا اور اس نے یہ شعر کہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع یہ انسان کا نہیں ہے، چوتھا مصرع محمد رسول اللہ کا ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اس لیے میرے بھائی بیت اللہ کی حاضری کا بار بار ارادہ کیجئے، رمضان میں خصوصاً حرمین پہنچیے۔ یہ ایک بات تھی جو فضائل مدینہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ دوسری بات ہے مدینہ کی تکلیف، مدینہ کی موت اور مدینہ کی موت پر فضیلت۔
हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यमूता फिल मदीनती फलयमुत, जो तुम में से मदीना जाकर मरने की इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि वो मदीना में जाके इंतकाल करे। सरकार ने मौत मदीना की तमन्ना करने की इजाजत दी। इसी का नतीजा है हजरत उमर रोजाना ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बल्दि हबीबिक, ऐ अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत हो, तेरे हबीब के शहर में मौत नसीब हो। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए अपनी दुआओं में मदीने वाली मौत की अल्लाह से तमन्ना करे, मदीने में इंतकाल हो इसकी अल्लाह से दरखास्त करे। एक हदीस में सरकार ने फरमाया, ला यस्बिरु अहदुन अला लावाइहा, मदीना की तकलीफ पर जो बंदा भी सब्र करता है उसी तकलीफ में उसका इंतकाल हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन्तु शहीदन व शाफियान यौमल क़ियामा, मैं उसके ईमान की गवाही दूंगा क़यामत के दिन और मैं उसकी शिफाअत करूंगा। जो मदीने की तकलीफ को बर्दाश्त करे और उसी तकलीफ में उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी ने कहा उसके ईमान का गवाह मैं हूं और क़यामत के दिन उसकी सिफारिश मैं करूंगा। इसीलिए मदीने की मौत की तमन्ना करनी चाहिए। अल्लाह ने जिसको भी मौका दिया है वो ज़ह नसीब है, अल्लाह ने उनको मकामात से नवाजा है। हर मुसलमान को भी चाहिए मदीने में वक्त गुजारे। जितना उम्रा के लिए हज के लिए जाते हैं दुआ करिए, अल्लाह अगर मौत है तो मेरी मदीना में मौत अता फरमाए, मौत है तो मेरी मक्कतुल मुकर्रमा में मौत अता फरमाए। जब तक आदमी जन्नतुल बकी में है वो समझिए कि जन्नत की हवाओं में है। सहाबा के पड़ोस में, सहाबा के पहलू में जिसको जगह मिल गई वो कितना खुश नसीब है। एक हदीस में आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मदीना की गर्मी को बर्दाश्त किया, उस पर सब्र किया, अल्लाह उस पर जहन्नम की गर्मी को हराम कर देंगे। जिसने मदीने की गर्मी को बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की गर्मी को हराम कर देंगे, महफूज रखेंगे। इसलिए मदीने की तकलीफ, मदीने की किसी भी तरह की मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना चाहिए और उस पर अल्लाह की तरफ से अज्र की उम्मीद रखनी चाहिए। मौत तो खुश नसीबों को मिलती है। ये जो सानिया हमारे हैदराबाद के बाशिंदों के साथ हुआ है, इस सिलसिले में भी एक बात सुन लीजिए। अल्लाह के पास बंदे को हाई क्लास की एक जन्नत तकदीर में तय कर देते हैं। नबियों के साथ होगा, कुतुब और अब्दाल के साथ होगा, जन्नत में तकदीर में पहले से तय कर देते हैं। लेकिन बंदा पीराने पीर जैसे अमल नहीं करता है, बस फराइज पढ़ लिया, चंद रोजे रख लिया, जिंदगी गुजार लिया, कोई खास नवाफिल नहीं हुए, लेकिन उसको वो वीआईपी ट्रीटमेंट देना है जन्नत में, तो अल्लाह ताला ऐसे हादसे और शहादतों से वो मकाम उनको देते हैं जो इंशाअल्लाह इन 42 ज़ाइरीन हरम को जरूर हासिल होगा। ऐसे ही इन शोहदा के सिलसिले में एक और बात भी सुन लीजिए। सरकार ने फरमाया जो उम्रा करके आएगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये लोग उम्रा करके आए, गुनाहों से मगफूर हो गए, अल्लाह के रास्ते में जान देकर, शहादत देकर अल्लाह के पास मकबूल भी हो गए। अल्लाह से हम यही उम्मीद और तवक्को और दुआ करते हैं, अल्लाह इनके उम्रे की के जरिए मगफिरत फरमा दे, शहादत के जरिए इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और आला दर्जात से अल्लाह ताला इनको क्या कहते हैं माला माल फरमा दे। ऐसे ही इन शोहदा के सिलसिले में बोराबंडा के भी कुछ लोग इनके रिश्तेदार हैं, इनसे मुताल्लक हैं। ऐसे मौके पर सरकार की हिदायतें क्या है? तो जो रिलेटिव्स है, जो मुताल्लिकीन है, उनको चाहिए कि इनकी जानी मदद करे। अगर ऐसा हादसा बदर में हुआ, 70 लोग शहीद हुए, ओहद में भी 70 लोग शहीद हुए, ऐसे मौके पे सरकार क्या करते थे? मुस्लिम हुकूमत होती तो इनको जमीन और जायदाद इनके वारिसीन को अलाट की जाती। मुस्लिम हुकूमत होती तो बैतुल माल से मौजूद वरसा को माहाना वजीफा दिया जाता।
मुस्लिम हुकूमत होती, वारिसों की मुकम्मल तालीम का हाकिम अमीर इंतजाम करता। अब यहां पर वो चीजें हैं नहीं, तो जो आपसे या आपके दोस्तों में जितने मुताल्लिकीन हैं, इन लोगों के, इनके फैमिलीज के, इनके खानदान के, जान से, माल से, जायदाद से इनकी मदद करे, ताकि इन्होंने जो अपनों को खोया है उसकी तकलीफ का इनको जिंदगी में कभी भी एहसास ना हो। इतना माल से और दुनिया से इनकी मदद करे। ऐसे ही इनमें अगर कोई मर्द है, कोई खातून है, तो उनके निकाहें भी कर दे। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या कहते हैं, उम्मे हबीबा है, हुजूर की कई अजवाज है जिनके शौहर जंगों में शहीद हुए थे, सरकार ने उनसे निकाह किए हैं। मर्द हो या औरत, जो बाकी है उनके निकाहें भी हो जाए, उनकी माली मदद भी की जाए, और जुमा के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ कीजिए कि अल्लाह जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, जो अजियतनाक दौर से उन्होंने गुजरा है, अल्लाह उनके उस अमल को कबूल फरमा, तरक्की दर्जात का सबब बना। ये चंद बातें थी जो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज की गई। एक और मौजू इस मौके पर आपकी खिदमत में अर्ज करना है, सफर कब करना जायज है, कब करना जायज नहीं है। सफर की 2 किस्में होती हैं। सफर बोलते ट्रैवल, सफर कब करना जायज है, कब जायज नहीं है। सफर की 2 किस्में होती हैं। एक दीनी सफर होता है, एक दुनियावी सफर होता है। हज है, उम्रा है, दावत व तबलीग है, तालीम के लिए मदरसे की बच्चा दूसरे इलाके में जा रहा है, ये सब दीनी सफर होते हैं। ये बिला किसी तरद्दुद के करना है, जायज है। दूसरा सफर है दुनियावी, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए आदमी कहीं सफर करता है, ये भी जायज है। तीसरा सफर है तफरीह के लिए, अय्याशी के लिए। ये सफर नहीं करना चाहिए। सफर को सरकार ने क्या कहा सुनिए, अस्सफरु क़िताअतुम मिनल आदाब। सफर अजाब की एक तस्वीर है। अगर समझ में नहीं आई तो वो कार, वो बस को और वो उसके मंजर को देख लीजिए। सफर एक किस्म का अजाब है। सरकार बोले चाय पीने संगारेड्डी को जा रहे, उसी हादसे में आने जाने मर गया ना, सबसे बदतरीन मौत मरा हूं। जहीराबाद को, सदासीपेट को चाय पीने, बिरयानी खाने, बारकस को मंदी खाने जा रहे, वो जाते आते में मर गया तो बदतरीन मौत मरा। बिला जरूरत सफर करना ही नहीं है। कोई शदीद जरूरत है तो सफर करना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है मौलाना शाह अबराउल हक साहब, उनकी भांजी का निकाह था, तो मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को खत लिख के दरखास्त करे, हजरत आप आइए, निकाह पढ़ाइए और दुआओं से हमारी बेटी को नवाजिए। तो हजरत ने कहा इतनी दूर किसी को दावत में बुलाना बोल के, सफर कराना बोल के, कहीं हदीस में है तो लिख के भेजो। हमारी कौम बेंगलुरु को रस्म में शिरकत के लिए जा रही, वो भी कौन जा रहे हैं, जिनको सुबह में शुगर की 2 गोली, शाम में बीपी के 4 गोलियां। कोई है ही नहीं, तुक है ही नहीं। जिंदगी ऐसी लापरवाही के साथ गुजर रही है। ऐसे हादसों के मौके पर किसी का इंतकाल हो गया तो वो बहुत बदतरीन मौत है। सरकार ने अचानक मौत से पनाह मांगी है, सरकार ने जल के मरने से पनाह मांगी है, सरकार ने हादसे की मौत से पनाह मांगी है। हदीसों में दुआएं हैं मौजूद, हिस्नुल हसीन में वो अल्फाज मौजूद है। इसलिए बिला जरूरत सफर नहीं करना चाहिए। शदीद जरूरत है तो ही सफर करना चाहिए, बिला जरूरत के सफर नहीं करना चाहिए। सफर अजाब है, नमाजों से, इबादतों से रोक देता है। सफर में किसी किस्म का हादसा हो गया तो बहुत बड़ी मौत है। अब ये जो सफर है हज और उम्रे का, इसमें इंतकाल हुआ, यहां रुक के एक शैतान की बात सुन लीजिए। जावेद अख्तर बेदीन मुल्हिद आदमी है, उसने कहा कि अगर अल्लाह जिंदा है, आप हज को जा रही, हादसा हो गया, अल्लाह के घर को आने वालों को अल्लाह नहीं बचा सक रहा तो वो अल्लाह कैगू है। सुनते ना उसको, इसलिए सुना रहा हूं मैं आप। तो ये बात जहन में रख लीजिए, जो भी दीनी सफर में इंतकाल कर रहा है वो शहीद है। दूसरी बात,
اللہ जब सब कुछ देख रहे हैं इसके बावजूद क्यों नहीं बचा रहे? ये दुनिया दारुल जजा नहीं है, ये दुनिया दारुल असबाब है। आप करंट का वायर पकड़ेंगे तो करंट आएगा, ऐसा सिस्टम यहां बना दिया अल्लाह। पानी मुंह में डालेंगे तो प्यास बुझेगी, ऐसा सिस्टम यहां बना दिए हैं। इस सिस्टम के खिलाफ करे तो फिर अल्लाह इस दुनिया में जालिम हो जाते। सबके हाथों में जिंदगी के असबाब दे दिए, ये चूज करो, ये पसंद करो, ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता। अब बंदा जैसा इख्तियार करेगा वैसा उसको नतीजा मिलेगा। इसलिए दीनी असफार में किसी का भी इंतकाल हो, चाहे वो हज पर गया हो, उम्रे पर गया हो, चाहे वो हिजरत कर रहा हो, ऐसे तमाम सफरों में जिसका इंतकाल हो वो शहीद है। सफर करने की 13 किस्में हैं, 5 दीनी है, 6-7 दुनियावी है। इसके अलावा जो सफर किए जाते हैं ऐश के लिए, गोवा टूर को चले गए, कश्मीर को चले गए, यहां भी 2 चीजें हैं। एक है नफ्स को खुश करने जा रहे, दूसरा है कुदरत के करिश्मे देखकर खुदा को पहचानने जा रहे। वो चीज पेशे नजर है और उसके साथ कुछ तिजारत भी है तो फिर ऐसे टूर कर सकते हैं। लेकिन खालिस अय्याशी का सफर, सिर्फ मिजाज को खुश करने के लिए सफर हो रहा। गोवा को आज से 18 साल पहले एक साहब पंप वो वेल्ड मैकेनिक की दुकान चलाते थे बोरा बंडे में। उस जमाने में गोवा में 50,000 का खर्चा करके आए थे। मैं गाड़ी धोने को दिया तो सुना रहे हो। ऐसे सफर करने के दरमियान कोई मर गया, सबसे बदतरीन मौत। चाहे ट्रेन में मरो, प्लेन में मरो, कार में मरो, बस में मरो, गाड़ी में मरो। खालिस अय्याशी का, मस्ती का जो सफर तय होता है, खुसूसन बच्चे जाते हैं पिकनिक बोल के, संगारेड्डी के पानी के झरनों में गए, वहीं पे बच्चा डूब के मर गया। कौन है ये? खुदकुशी की मौत है ये, अपने आप को मार लेना है। इसीलिए बच्चे अगर पिकनिक पे भी गए, कहीं घूमने भी गए, बच्चों को खुदा की कुदरत को देखना है बोल के ले जाइए, अच्छी निगरानी करिए, अच्छी जिम्मेदारी के साथ लेके जाइए। लेकिन बेहतर यही है कि एक रिश्तेदार के घर को जाना, वहां से वहां पिकनिक भी कर लेना। खास पिकनिक बोल के सफर करना ये बड़ा मसला है। चाची के घर को चले गए, वहीं पे कुछ था तो देख लिए, ये ठीक है। लेकिन देखने के ही गर्ज से जाना, क्योंकि जिन मौकों पर सफर करने की इजाजत है उनमें एक ये सूरत भी है कि खाला से मिलने के लिए सफर कर सकते हैं, फुप्पू से मिलने के लिए सफर कर सकते हैं। इस नियत से कहीं पे चले गए, फिर कुछ घूम लिए, ये ठीक है। लेकिन सिर्फ घूमने के लिए गए और उसी में इंतकाल हो गया तो ये भयानक मौत है। इसलिए इसका भी एहतियात, इसको भी मलहूज खातिर रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन शुहदा की शहादतों को कबूल फरमाए और इनके जो पसमानदगान है अल्लाह अपनी तरफ से इनकी गैबी मदद फरमाए और हम सब को इनकी गमखारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।